So welcome to the lecture number 2 of Basic Chemistry of Surfactant Chem 504. The title of the lecture is Type of the Solution and the Role of Surfactant, and we are going to discuss its part 2. In part 1, we had discussed the differences between mixtures and compound and the types of interactions responsible for the formation of these two categories of compounds and mixtures. Today in the part 2, we are going to discuss the ways of classification of mixture. Now, when I use the word mixture, this means that we are talking about the two components that have interacted together through certain physical interaction, as discussed in part 1 of the lecture. There are different ways to classify the mixture. When two components they interact with through physical interaction, then they can be classified either based on the number of components, based on the state of the components, uniformity present in the mixture, or on the basis of the particle size. We will discuss them one by one. So, first way of classification based on the number of components. How many number of components are mixed together? 2 or more. They will decide the title that will be given to this classification, either as binary mixture, ternary mixture, or quaternary mixture. In binary mixture, two components are combined together or mixed together. For example, take a glass of water and add some sugar in it. Now, what will be formed? A sweet solution of the sugar. So, the solution of the sugar in water is an example of binary mixture. There are two components in this solution, one is the water and second is the sugar. Though the sugar after dissolution is not visible, the whole solution is uniform and have same texture throughout, but this is not a pure compound, rather it is a binary mixture. Why? Because the physical interactions are present among the molecules of sugar and water. They interact together through physical interaction to make a solution. This is the example of binary mixture, a mixture of two components. One is solute and other is solvent. Now, take the same sugar solution and add some salt in it. Now, you have added the third component in it, and the resultant mixture will be a mixture of 3 components. So, it will be regarded as ternary mixture. Now, after dissolving these 3 components together, making a uniform solution, you know that salt also dissolves completely in the water, sugar also dissolves completely in the water. So, in this ternary mixture, what we expect is the texture of uniform, but the taste will be different from the taste of this sugar solution. This will be the sweet one and this will be having sweet as well as salty taste in it. Now, in order to make the quaternary means 4 component, binary means 2 component, ternary means 3 component and quaternary means 4 component mixture. To make a quaternary mixture out of this 3 component mixture, let us add some lemon in it. तो अब क्या हुआ, नींबू की स्कंजबीन बन गई है हमारे पास. इसमें कितने कंपोनेंट है? एक हमने वाटर डाला था, एक शुगर डाला, एक हमने सॉल्ट डाला, एक हमने लेमन डाला, लेमन जूस इसके अंदर आ गया. ठीक है, तो 4 कंपोनेंट का मिक्सचर है. सो इट इज़ अ क्वाटनरी मिक्सचर. अब ज़रा इनके टेक्सचर्स को ऑब्जर्व करते हैं. शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वन single phase solution, and when salt was added, again single phase solution, but it was slight different in color as well as different in the taste as well. But when the lemon was added, this solution became a bit more colloidal, less clear and more opaque. Transparency of the solution was lost, and this quaternary mixture is having a different taste and different properties from this ternary mixture or this binary mixture. So, 2 component is a binary mixture, 3 component was a ternary mixture having water, salt and sugar in it,
and the fourth component having water, salt, sugar and lemon juice in it was an example of quaternary mixture. Another way to classify these mixture is based on the state of the components. Components की state पे जब हम इसको करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि मेरा जो दोनों components हैं वो किस phase में exist करते हैं. अगर एक solid को दूसरे solid के साथ mix किया जाए तो मेरे पास solid-solid mixture develop होगा. The example of solid-solid mixture are collection of beans. You can mix cement, sand and water to form a slurry. हमारा जो ये लेंटर का मटेरियल होता है. इसी तरह से और एलॉयस जिसमें डिफरेंट तरह के मेटल्स को हम कंबाइन करते हैं और डिफरेंट तरह की डेली इस्तेमाल की चीज़ें बनाते हैं. सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स जिसमें एक कंपोनेंट सॉलिड फेज में होगा और दूसरा लिक्विड में होगा. द क्लासिक एग्जांपल वाज सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, लेमन जूस इन वाटर, ग्रीन टी, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ द टी, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. आप टैंक बनाते हैं, जूसेस वगैरह बनाते हैं, हम उसमें एक सर्टन सॉलिड पाउडर है जिसको हम डालते हैं लिक्विड के अंदर और एक यूनिफॉर्म टेक्सचर का हमारे पास बनता है. सम पल्पी जूसेस दे आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ द सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. पेंट्स जिसमें पेंट कलर्ड पिगमेंट्स को हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करके जो है वो एक यूनिफॉर्म टेक्सचर का मटेरियल बना लेते हैं. हनी इज़ एन अदर एग्जाम्पल. नंबर ऑफ सॉलिड्स आर देयर और विच आर डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड फेज. Similarly, mud, flour and there are numerous examples in our daily life that belong to the solid liquid solutions. अब जो solid liquid solution है उसमें अगर solid की quantity बहुत ज़्यादा कर देंगे तो एक जो है वो डो लाइक टेक्सचर हमें अचीव होगा, लाइक इन मड एंड इन फ्लोर जैसे हम डो वगैरह बनाते हैं तो उसमें सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, लिक्विड की क्वांटिटी कम है. तो सो रिलेटिव क्वांटिटीज़ डज नॉट डिफाइन कि स्टेट के बेसिस पे हम इसको एक नई क्लासिफिकेशन में डालेंगे. क्लासिफिकेशन वही रहेगी और कन्वेंशन क्या है कि मोर कंडेंस फेज को हम पहले लिखते हैं और लेस कंडेंस फेज को हम बाद में लिखते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ सॉलिड गैस फेज. सॉलिड गैस मिक्सचर, the example is smoke as well as foam. जैसे हम सोप से या किसी भी शैम्पू डिटर्जेंट से फोम बनाते हैं. बबल्स, बेसिकली बबल्स क्या हैं, एक पूरा सॉलिड माइसल है ये जो कि बना है सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल से और उसके अंदर एयर ट्रैप्ड है. तो ये ट्रैप्ड एयर इज़ द गैस फेज और उसके अराउंड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं दे आर सॉलिड फेज. सिमिलरली द कलेक्शन ऑफ दीज बबल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस फोम. और स्मोक में क्या है कि एयर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स दे आर डिस्पर्स्ड. सो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड गैस फेजेस. एंड सिमिलरली जो फोम है या स्पंज जो हम घरों में यूज़ करते हैं तो स्पंज के अंदर देयर आर एम्प्टी स्पेसेस, तो इसके अंदर गैस ट्रैप होती है. आपको पता है इसको स्क्वीज़ करते हैं तो बहुत हद तक हम इसको जो है वो दबा लेते हैं और उसका वॉल्यूम हम कम कर सकते हैं. हर वो चीज़ जिसको दबा के उसका वॉल्यूम कम कर दिया जाए और उसके अंदर से कोई लिक्विड नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है उसके अंदर ट्रैप्ड गैसेज आर देयर और वो उस पोरस नेटवर्क से ट्रैप्ड गैसेज जो हैं वो रिलीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो प्रेस हो जाता है. ठीक है, तो ये जो सॉलिड नेटवर्क पोरस मटेरियल, तमाम पोरस मटेरियल्स having trapped gases in them, they are also example of solid gas mixture. or slight van der Waals forces of interactions are there as physical interactions. Next is liquid phases. For example, mix some carbonated water with orange juice, mix some sugar water with orange juice. These are all example of mix any oil with water, though they will separate out after certain time, जो कि आगे हम फेस सेपरेशन में जाकर पढ़ेंगे इस फिनोमिना को. और अगर हम डिफरेंट कलर के सॉल्यूशंस को जो है वो आपस में मिक्स करते हैं, अगर वो मिक्सिबल हैं तो दे विल मिक्स टुगेदर, तो लिक्विड मिक्सचर बन जाएगा. और अगर दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया, फेस सेपरेशन हो गई, तब भी वो लिक्विड मिक्सचर ही कहलाएगा. सिमिलरली आप एथेनॉल को ले लें वाटर के अंदर. अब एथेनॉल एक फ्रीली सॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि इजीली वाटर के साथ मिक्सिबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर. तो एथेनॉल भी एक लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है. दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया तो जो रिजल्टेंट एथेनॉल इन वाटर का सोल्यूशन मिलेगा वो होगा लिक्विड सोल्यूशन. नेक्स्ट इज़ लिक्विड गैस. लिक्विड गैस के एग्जांपल में आपके पास फोम कमिंग आउट ऑफ दिस कोक बॉटल है.
गैस गैस मिक्सचर की क्लासिक एग्जांपल इज़ द एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एक तरह की गैस दूसरे में कम्प्लीटली डिस्पर्स्ड है और फिजिकल इंट्रैक्शंस आर देयर इज़ नो केमिकल इंट्रैक्शन इन इट, तो दिस विल बी रिगार्डेड एज गैस मिक्सचर। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी इन डिस्पर्शन। दो कंपोनेंट्स लिए, उनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अगर कंपोनेंट 1 कम्प्लीटली ईजीली मिक्स हो गया कंपोनेंट 2 के साथ इन सच अ वे कि आप मिक्सचर के अंदर किसी भी साइड से सैंपल कलेक्शन कर लें, आपको इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 नज़र आए, तो इसका मतलब है कि आपका मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर बना है। और अगर आपने उसी सैंपल के अंदर से दो मुख्तलिफ जगह से सैंपल कलेक्शन की, एक की कंपोजिशन आपको डिफरेंट नज़र आ रही है, दूसरे की कंपोजिशन आपको डिफरेंट नज़र आती है, तो इसका मतलब है कि वो मिक्सचर एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर में की एग्जांपल तमाम सॉल्यूशंस, हर वो सब्सटेंस जो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, हर लिहाज से मिसिबल हो जाता है और सिंगल फेज देता है, लाइक शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, एयर इज़ एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। ऐसा नहीं है कि किसी रूम के एक कॉर्नर में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और उसी रूम के दूसरे कॉर्नर में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होगी। एक गिवन सी लेवल पर आपको यूनिफॉर्म ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन मिलेगी और ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से रेन इज़ द यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ डिज़ोल्व्ड एसिड्स इन वाटर, ठीक है। वाइन, स्टील, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें अलग दो जगह से आप बस सैंपल कलेक्शन करें और आपको दोनों की कंपोजिशन सेम नज़र आए, तो इसका मतलब है कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। वेयर एज हेट्रोजीनस मिक्सचर में आपको डिफरेंट कंपोजिशंस जो हैं वो नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल किसी सस्पेंशन वाले सोल्यूशन में एक ग्लास लें और ग्लास ऑफ वाटर, उसके अंदर आप ढेर सारा टैंक डाल दें। अगर वो आपने सैचुरेशन लिमिट उसकी क्रॉस कर ली, यानी कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टैंक बना दिया, तो यू विल सी कि सर्टन मटीरियल जो है वो नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हुआ होगा और सर्टन मटेरियल है जो कि यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हुआ होगा। तो वो जो बॉटम के ऊपर सेटलमेंट ऑफ द मटेरियल है या सस्पेंशन है, इसकी अनदर एग्जांपल अगर आप देखें तो जो मेडिसिन सिरप्स हैं, सो मेडिसिन सिरप्स दे ऑल आर सस्पेंशन। अगर आप बॉटल को पढ़ें तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि शेक द सस्पेंशन बिफोर यूज़, तो वो सस्पेंशन है। इसका मतलब है कि उसमें हेट्रोजेनिटी मौजूद है, वो मटेरियल जितना भी है, जो मेडिसिन है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाती है और उसके बाद लिक्विड उसके ऊपर हो जाता है और उसको आपको पीने से पहले जो है वो यूज़ करने से पहले उसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर को मिक्स करना पड़ेगा अगर आपको उसकी यूनिफॉर्म यूटिलिटी चाहिए तो। इसी तरह से अनदर क्लासिक एग्जांपल आपके पास है, अगर आप कंपेयर करें मिल्क और उसको लस्सी से कंपेयर करें, लस्सी भी थोड़ी देर रखने के बाद सेटल हो जाती है, वाटर उससे सेपरेट आउट हो जाता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है बिकॉज इट इज़ अ सस्पेंशन। जबकि दूसरी तरफ मिल्क, उसको अगर आपने रखा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको बॉयल नहीं किया हुआ या स्टेन कर लिया है बॉयल करने के बाद, तो वो उसके ऊपर मलाई की सेपरेशन नहीं होगी और वो एक यूनिफॉर्म मलाई आपने उतार ली है, तो उसके बाद जो आपके पास मिक्सचर बनेगा वो एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक इमल्जन के तौर पर वो एक्ट करेगा। तो वो तमाम मटेरियल जहाँ पे होमोजेनियस प्रॉपर्टी, होमोजेनियस को टेस्ट करने का एक और तरीका ये है कि अगर आप कोई इडाइबल चीज़, कोई खाने की चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप एक साइड से सैंपल लें तो आपको सेम टेस्ट आना चाहिए, दूसरी साइड से लें, बॉटम ऑफ द ग्लास से भी सेम टेस्ट आना चाहिए और टॉप ऑफ द ग्लास से भी सेम टेस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है होमोजेनियस सोल्यूशन है। अगर नहीं आ रहा तो मीन्स कि हेट्रोजेनस सोल्यूशन है। तो सीरियल्स इन मिल्क, ऑयल एंड विनेगर का सोल्यूशन होगा तो हेट्रोजेनस होगा। इसी तरह से सॉइल इज़ द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज की बेसिस पे जब हम मिक्सचर को क्लासीफाई करने लगते हैं तो जो पहला टेस्ट मेरे पास आता है वो ये आता है कि लाइट की तरफ या ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस का रिस्पॉन्स क्या है। वो मटेरियल जिसके अंदर से लाइट इजीली पास हो जाती है, ट्रांसपेरेंट लुक देते हैं, आप गिलास में डालें उस सॉल्यूशन को और उसके आर पार आप देख सकें, तो उन तमाम सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि पार्टिकल इतने फाइनली मिक्स हो गए हैं अपने सॉल्वेंट के अंदर कि अब वो लाइट के पैसेज ऑफ लाइट को कोई मेजर हिंड्रेंस नहीं दे रहे। छोटे साइज़ का पार्टिकल है, लाइट कैन ईजीली पास थ्रू द मटेरियल और ट्रांसपेरेंसी आ रही है मेरे मटेरियल के अंदर, मिक्सचर के अंदर।
अगर पार्टिकल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि लाइट तो इस सॉल्यूशन के अंदर एंटर होगी, लेकिन वो उसी इंटेंसिटी के साथ एग्जिट नहीं कर सकेगी। सॉल्यूशन का टेक्सचर हमें मिल्कीनेस सा नज़र आएगा, इट विल बी लेस ट्रांसपेरेंट। और अगर आप लाइट की तरफ करके इसको देखें तो आर पार देखना आसान नहीं होगा, बल्कि आपको नज़र आएगा कि ये सॉल्यूशन में थोड़ा सा मडी सा टेक्सचर है, या इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा मिल्कीनेस है, ट्रांसपेरेंसी इसकी कम है। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है वो मिरर की तरह, ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह ये एक्ट नहीं करेगा। तो इन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कोलाइडर्स। कोलाइड्स हैं यानी वो तमाम सॉल्यूशंस जिसमें पार्टिकल्स तो फाइनली डिस्पर्स्ड हैं, होमोजेनिटी भी हमें नज़र आ रही है, सिंगल फेज भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो लाइट की पैसेज को हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करवा रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज कोलाइड्स। और नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स कोलाइड के पार्टिकल्स से ज़्यादा बड़े होंगे, इतने बड़े होंगे कि सॉल्वेंट इसके वेट को ज़्यादा देर के लिए रिटेन नहीं रख सकता और ये बॉटम की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हमें सस्पेंशंस को शेक करना पड़ता है। अगर कोई ऐसे यूटिलिटी जैसे मेडिसिन वगैरह जिसमें हमें उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन चाहिए हो, तो हमें उसको इस्तेमाल से पहले हिलाना पड़ता है, शेक करना पड़ता है, सो दैट यूनिफॉर्मिटी दोबारा से अचीव की जा सके, इजीली डिस्पर्स किया जा सके, पार्टिकल्स को यूनिफॉर्मली डिस्पर्स किया जा सके सॉल्वेंट के अंदर। तो वो तमाम सस्पेंशंस कहलाते हैं। तो बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज सॉल्यूशन, अ लिटिल बिट बिगर पार्टिकल साइज कोलाइड्स, मोर बिगर पार्टिकल साइज मीन्स सस्पेंशन. So these are the ways in which we can classify our mixtures based on the number of components, state of the components, uniformity in dispersions, and on the basis of particle size. If we talk about the types of the mixture and the phases of matter, तो homogeneous वो mixtures जिसमें throughout there is a uniformity in the property, आमतौर पे solid state के होते हैं, सॉलिड लिक्विड के मिक्स करने से बनते हैं, लिक्विड लिक्विड का कॉम्बिनेशन हो सकता है या कि फिर गैस गैस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर सॉलिड सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड्स भी हो सकते हैं, सॉलिड गैस भी हो सकते हैं, और लिक्विड लिक्विड का कॉम्बिनेशन भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर बना सकता है। सो इन दिस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड द वेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ द मिक्सचर in relation with the phases of matter. See you in the next part.